हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम सीखेंगे एमएल अग्रवाल क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1। इस वीडियो में हम स्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 3 to 5 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स डेटा। व्हाट इज द डेटा? Collection of facts such as numbers or observation for analysis is called data. Suppose your teacher asks you write down the marks obtained by the students in maths in the unit test. So what you will do? You will go one by one and ask the marks and write down in a paper. Such collection of numbers is called the data. And there is no ascending and descending order, so it is also called raw data. So whatever marks you collected, suppose 40 marks paper was there and you write down suppose 36, then 15, other one got 27, next one is 28, other one is the 30, now the 16, 20, 5, 7, 16, 18, likewise. So these are the, and someone get the 38, one got the 40. So this is the marks obtained by the students. So such collection is called the data, and it is not in the ascending or descending order. As you ask and write down the same way, so it is a called raw data. Data in original form or unprocessed form is called raw data. Now if you write in ascending or descending order, then that is the arranged data. After that, suppose your teacher asks you write down it in the ascending order. So you collected the data, that's why this is the primary data for you. But you collected and teacher asks other persons to write in descending or ascending order, or your teacher took these numbers and started to writing in ascending and descending order, then these data is the secondary data for your teacher. The person who collected the data, for that person it is a primary data, but the other than that person, if anyone working on the same data, then the data is the secondary data of the person. Secondary data, the data used from existing source, means it is written also by someone else, is called secondary data. Means if data is used by other than the person who collected the data, then it is a secondary data for the person. So I hope इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा क्या? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है? 40। अगर आप यहाँ रेंज निकालने जाएंगे तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज के लिए आप लेंगे 40 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ क्या है? 5। तो 45 माइनस 5 इज 35। इट इज़ द रेंज ऑफ डेटा। जनरली क्लास इंटरवल में नहीं होते, उनके लिए होता है हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। ये रेंज ऑफ डेटा हो गया। अभी ये स्टंग की टेबल आपको 10th में देखने को मिलेगी। ऊपर में क्लास या क्लास इंटरवल लिखा रहेगा, नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी। इस टाइप में जो नंबर दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इट इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। ग्रुप ऑफ वैल्यूज इनटू व्हिच डेटा इज ग्रुप्ड, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। आई होप क्लास इंटरवल क्लियर हो गया आपको। क्लास इंटरवल के बाद आपका आता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 to 10 में 0 to 10 अगर है आपका, सपोज करो 0 to 10, तो यहां हो जाएगी लोअर लिमिट, और इस साइड में होगी अपर लिमिट।
मीन्स किसी भी डेटा में राइट साइड में अपर लिमिट और लेफ्ट साइड को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो 0 to 10 में 0 इज द लोअर लिमिट and 10 is the upper limit. So for finding the class width, what you will do, you will write here upper limit is 10, 10 minus 0, that is equal to 10. You can take another, upper limit is 20, lower limit is 10, 20 minus 10 is equal to 10. It means class width is 20. Upper limit minus lower limit इज आवर क्लास विड्थ। आई होप इतना क्लियर हो गया। क्लास विड्थ आपको क्लियर हो गया, क्लास इंटरवल क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो क्लास मार्क है। क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट क्या है पहले क्लास इंटरवल की 0, सॉरी अपर लिमिट है 10 प्लस लोअर लिमिट है 0 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5। एंड सेकेंड क्लास इंटरवल ये 20 प्लस 10 अपॉन 2 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। अभी हमने क्लास विड्थ फाइंड किया था 10। क्लास विड्थ 10 को अब पहले वाले क्लास मार्क में प्लस करिए तो 15 मिला, इसमें 10 प्लस करेंगे 25 और 25 में 10 प्लस करिए 35, 35 में 10 प्लस करिए 45, 55 एंड 65। ये आपके क्लास इंटरवल हो, क्लास मार्क्स हो जाएंगे। अभी हम आगे के क्वेश्चन में क्लास मार्क इसी ढंग से फाइंड करेंगे। तो क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क के बाद आपका अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये जो कॉलम में दिया 0 to 10 में कितने लोग हैं 8, मीन्स 10 से लेस देन 10 है, 10 नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लोअर लिमिट में ही इंक्लूड होता है नंबर, अपर लिमिट नंबर इंक्लूड नहीं होता है। तो 10 से लेकर के लेस देन 20 के लिए 10, 20 से लेकर लेस देन 30 तक के भी 10, 30 से लेकर के लेस देन 40 तक 16। इस ढंग से ये अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मीन फाइंड करने के फार्मूले, डायरेक्ट मीन मेथड का यूज करेंगे। फार्मूला लिखिए, अभी आगे हम एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है। मीन को के साथ में एक्स बार लिख सकते हैं, एक्स बार, एक्स के ऊपर एक लाइन लिखेंगे दैट इज मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। अभी क्लास मार्क हम आगे फाइंड करके आपको दिखाएंगे, पहले फार्मूले नोट डाउन कर लें। अगला फार्मूला होता है मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन में एक नंबर को हम मीन फाइंड करते हैं, ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे अभी ये क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आप फार्मूला लिखिए, मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए एंड एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। तीसरे फार्मूले को देखिए, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन, यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। इसको और भी समझ सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं डी आई अपॉन एच, अभी आगे आपको दिखाएंगे। एंड एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, एच इज द क्लास विड्थ ऑफ द ईच क्लास। इन सारी चीज़ों के डेफिनेशन हम आगे क्लियर कर चुके हैं पहले ही। अभी हम क्वेश्चंस को लेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 भी सॉल्व करना था, बट क्वेश्चन 1 और 2 में जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे तो आपको इजी वे में आएगा, इसलिए हम उसका डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ाने के बाद हम वहीं पर कर देंगे या फिर से इसके लिए एक्सप्लेन कर देंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55। पहला क्लास हमारा लेंगे क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट 25 प्लस लोअर लिमिट 10 अपॉन 2, 10 प्लस 25 इज 35 अपॉन 2
इक्वल टू 17.5। दूसरे वाले का क्लास मार्क इक्वल टू 55। आप लोअर लिमिट भी पहले लिख सकते हैं, बट 55 प्लस 35 अपॉन 2 इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45। इस ढंग से हम क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे। अभी क्लास मार्क मिलने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो जो आपको ये नंबर्स दिए हैं इसको हम एज ए क्लास मार्क ट्रीट करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और डेविएशन मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। टेबल आपको कुछ इस ढंग से बनानी होगी। ये हाइट एज ए क्लास मार्क ट्रीट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे लेट assumed mean a इक्वल टू, बीच का नंबर लेंगे तो 158 ले लेते हैं। आप 158 भी ले सकते हैं, 160 ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 158, क्यों? डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर वैल्यू आएगी -8। दूसरा नंबर होगा 155 माइनस 158 इक्वल टू -3। 158 माइनस 158 इक्वल टू 0। 160 माइनस 158 इक्वल टू 2। 164 minus 158 equal to 6 and 168 minus 158 equal to 10। अभी एफ आई डी आई फाइंड करना है। एफ आई यहाँ पर 10 इंटू डी आई हो गया -8 इक्वल टू -80। दूसरा क्या है 15 इंटू -3 इक्वल टू 15 3 जा 45 -45। अगला नंबर है 8 इंटू 0 इक्वल टू 0। 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। 7 इंटू 6 इक्वल टू 42 एंड 16 इंटू 10 इक्वल टू 160। नेगेटिव नंबर को एक साथ प्लस करिए, ये आ जाएगा 5 12 125 माइनस के साथ 125 आएगा और ये नंबर्स को प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 10 यहाँ 0 हो गया, कैरी 1। 6 और 4 10 10 2 12 13 का 3 230। अभी यहाँ फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे -125 प्लस 230, यहाँ लिखिए 105 और सिग्मा एफ आई को प्लस करने जाइए, यहाँ मिल गया आपको 70। 70 मिलने के बाद आगे क्या करना है, मीन निकालना है x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। अभी मीन का फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। मीन x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप। ए की वैल्यू हमने कितना लिया है, एज्यूम्ड मीन 158 लिया है। 158 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई दैट इज 105 और 105 को डिवाइड करेंगे 70 से तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 158 प्लस
1.5 आएगा, डिवाइड करके देखिएगा 159.5, ये हमारा आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं मीन इक्वल टू 159.5, ये बुक के आंसर से हमारा मैच कर गया। आइए दूसरा लेते हैं, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें क्लास मार्क दिया डायरेक्टली और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम इसको डायरेक्ट ही फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए लिखेंगे 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, 15 इंटू 10 इक्वल टू 150, p इंटू 7 इक्वल टू 7p, 25 इंटू 8 इक्वल टू 200 एंड 30 इंटू 2 इक्वल टू 60। अभी क्या करेंगे, इनको प्लस करने के लिए जाएंगे, आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए 150 प्लस 50 200, 200 400, ये हो गया 460 प्लस 7p। और इस साइड में आएंगे, फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबको प्लस करिए, 32 आ गया, 32। अभी हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो गया। यहाँ पर लिखेंगे मीन की वैल्यू दिया 18.75 इक्वल टू 460 प्लस 7p अपॉन 32। अभी क्या करना है, 18.75 इंटू 32 इक्वल टू 460 प्लस 7p। अभी क्या करना है आपको, 18.75 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया। यहाँ क्रॉस आउट करेंगे, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 3 8 जा 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5। अभी इस नंबर को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 5 5 10 0, 7 प्लस 2 9 और 1 10 0 कैरी 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 0, ये हो गया 6 और 2 डिजिट पर डेसिमल। मतलब आपको यहाँ मिल जाएगा 600 इक्वल टू 460 प्लस 7p। अभी यहाँ कर सकते हैं 600 माइनस 460 इक्वल टू 7p। 7p इक्वल टू माइनस करेंगे यहाँ 0, 6 और 4 10 बचेगा 114। p इक्वल टू 140 अपॉन 7 इक्वल टू 20। आई होप क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल।